یہ چاہتیں یہ شدتیں از سمیرہ شریف تو یہ ناول ہماری ایک بہت پیاری سبسکرائبر کی فرمائش پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے. امید ہے آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا اور آپ اسی طرح ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے رہیں گے. مزید اچھے اچھے ناولز ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے تاکہ ہم آپ کی ریکویسٹ کو پورا کر سکیں. شروع کرتے ہیں. تولیے سے چہرہ صاف کرتے سامان احمد نے کمرے میں قدم رکھا تھا. تم بھی بے وقت آ ٹپکے ہو. اب بھلا یہ دکھ ہے کہ تمہارے ساتھ میں بھی اس حالت میں خوار ہوں. سامان کا انداز خفت لیے ہوئے تھا مگر ظفر کی جانب سے کسی بھی قسم کا رسپانس نہ ملنے پر سامان احمد نے تولیہ ہٹا کر دیکھا تو ایک لمحے کو سامان احمد کو اپنے حواس یکجا کرنا مشکل ہو گیا تھا. لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کا دل کئی بار دھڑک اٹھا تھا. یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ایک دم حواس میں لوٹتے ہی کچھ شرمندہ سا ہوتے ہوئے کہا. سامان احمد نے جھنجھلا کر تولیہ صوفے پر پھینک کر ظفر کی جانب پیش قدمی کی تھی جو اس کی طرف معنی خیز نظریں لیے مسکرا رہا تھا. وہی جو تمہیں نظر آ رہا ہے. ظفر کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی. سامان احمد مزید سٹپٹا اٹھا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ سامان احمد جیسا گھننا بھی محبت جیسا کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے. بکو مت، ادھر دو مجھے. سامان احمد نے خجالت کا تاثر مٹاتے ہوئے ظفر کے ہاتھ سے اپنی گرے کلر کی ڈائری چھیننے کی کوشش کی تھی مگر ظفر اس کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اچھل کر پیچھے ہٹ گیا. سامان خونخوار نظروں سے اسے گھورتا رہ گیا تھا. چھپایا تھا دل میں اسے مگر آیا ٹھہرا. سکون دل جسے سمجھے وہی درد نہا ٹھہرا. سامان احمد نے سختی سے لب بھینچ لیے جبکہ وہ بڑے خاص انداز میں گنگناتا رہا تھا بلکہ سامان احمد کو چڑھا رہا تھا. سامان احمد کو اس لمحے پچھتاوے نے آ گھیرا جب وہ اس ڈائری کو سرہانے تلے رکھ کر بھول گیا تھا. آج طبیعت بھی کچھ مزمحل سی ہو رہی تھی. اوپر سے ظفر کا فون آ گیا تھا. سامان احمد نے سرسری سے ذکر کر دیا تھا اور اگلے گھنٹے وہ یہاں موجود تھا. ظفر کے شگفتہ باتوں سے سامان احمد کی طبیعت کی ساری کلفت دور ہو چکی تھی. دونوں کا ارادہ باہر آؤٹنگ کا تھا اس لیے سامان احمد باہر لینے چلا گیا. واپس لوٹا تو سامنے یہ معاملہ درپیش تھا. ظفر، میں کہہ رہا ہوں شرافت کے ساتھ اسے مجھے دے دو. سامان احمد نے انتہائی ضبط سے ڈاکٹر ظفر کی آنکھوں سے چھلکتی عیاں ہوتی شرارت کو برداشت کیا تھا مگر ادھر تو سرے سے پرواہ ہی نہ تھی. متائے زیست اب تو خاکیلا دل براسی ہے. متائے زیست اب تو خاکیرا دل براسی ہے. وہ جس کا نام جپتے تھے نہ جانے وہ کہاں ٹھہرا. ڈاکٹر ظفر ڈائری کھولے مسلسل شرارت پر آمادہ تھا. انتہائی کول مائنڈڈ سامان احمد کا اس لمحے جی چاہا کہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل کا گلدان اٹھا کر ظفر کے سر پر دے مارے. ظفر، تم نے سنا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب کے سامان احمد نے بھنا کر اس کی جانب قدم بڑھائے تھے. اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتا ظفر نے چھلانگ لگا کر ڈریسنگ کی دوسری طرف رکھے صوفے پر جگہ بنا لی تھی. وہ قصہ ہر شب غم کا جو تھا تحریر طاقوں پر ہے دور شمع پورنم کہ آہوں کا دھواں ٹھہرا. ظفری، سامان احمد نے بیڈ سے کشن اٹھا کر اسے دے مارا مگر ادھر تو کان پر جوں تک نہ رینگی. صدا بھٹکا لیے لیکن مسافت میں نہ فرق آیا. وہی منزلیں اپنی طرح پر تو جہاں ٹھہرا. یہی دامن تو تھے ہی تہی دامن تو تھے ہی مگر یہ بھی کیا عالم ہے. نہ ٹھہرا اشک ہی آنکھوں میں نہ رخصت کا سما ٹھہرا. سامان احمد اسے کینہ توڑ نظروں سے سر دھنتے دیکھ رہا تھا. اس سے پہلے کہ سامان دوبارہ اس کی جانب پیش قدمی کرتا وہ اچھل کر بیڈ پر جا کھڑا ہوا. ہاتھ اونچا کیے وہ سامان کی پہنچ سے دور تھا. کرم جس کا بہانہ تھا جبیں کا جو ٹھکانہ تھا وہ رنگے آسماں ٹھہرا نہ سنگے آستاں ٹھہرا. ظفر، تم بہت کمینے انسان ہو. سامان احمد کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ اسے کچا نگل لیتا. وہ جب بھی بات کرتا ہے عجب مبہم سی ہوتی ہے. اب اس کی بات کیا کریں صدا کا بدگماں ٹھہرا. بہت دلکش تقاور سراپا حسن کا جلوہ کہ ہر انداز رعنائی میرا زورے بیاں ٹھہرا. سامان احمد نے ایک ہی جست میں اس تک پہنچتے ہی اس کے ہاتھ سے ڈائری چھین لی. ارے ارے یار، پڑھنے تو دو. تمہاری داستان عشق رو داد محبت
दर्द उल्फत बल्कि तुम्हारा जरिश नामा। उसने आंख मींची थी। समान अहमद का जी चाहा कि उसकी गर्दन दबोच ले। वो अब नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो गया था। समान अहमद ने डायरी साइड टेबल के दराज में रख कर लॉक कर दी और चाबी अपने पॉकेट में डालकर उसकी जानिब रुख किया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए जफर, इस तरह किसी के ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी करते हुए। समान अहमद की आंखों में वाज़ेह खफगी थी, बल्कि शर्म दिला रहा था। यूं अपना आप आया होने पर हल्की सी खफत भी थी। चेहरा कुछ सुर्खी लिए हुए था। डॉक्टर जफर उसकी बात पर एकदम कहका लगाकर हंस दिया था। समान का ये रूप उसे मजीद शरारत पर उकसा रहा था। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, मुझसे यूं पर्दापोशी करने पर, बल्कि जरिश का नाम छुपाने पर। मैंने तो यूं ही कमर सीधी करने को तकिया उठाया था। क्या पता था इस डायरी में तुम्हारी दास्तान इश्क रकम है। तुमने आधा घंटा बात लेने में लगाया है और मैंने चीदा चीदा इसे पढ़ने में। वो मुस्कुरा कर अपना कारनामा बता रहा था। समान अहमद ने अपनी खजालत मिटाने को उस पर कुशंस की भरमार कर दी थी। वो खुद को सेंध सेंध कर रखने वाला बंदा था, मगर अब बहुत गलत हरकत की। तुमने अगर ये डायरी उठा ही ली थी तो पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। अपनी खजालत पर वो खुद ही शर्मिंदा हो रहा था। जरिश अच्छी लड़की है, मासूम सी, क्यूट सी, मगर उसकी बात को कतई नज़रअंदाज किए वो अपनी हाँक रहा था। समान अहमद ने उसी शिकायती नज़रों से देखा। जफर, वो घूर कर रह गया तो वो हंस दिया। अब तो ऐसे मत देखो, मैं जरिश नहीं हूँ, आंख दबाकर वो कह रहा था। ना चाहते हुए भी समान अहमद के लबों पर एक धीमी मुस्कान आ ठहरी। फिर वो खुद ही कहने लगा, मैं खुद बहुत उलझा हुआ था, बल्कि मैं खुद तुमसे ये सब डिस्कस करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही ये सब हो गया। अपनी खफत को एक तरफ डालकर समान अहमद ने खुद को नॉर्मल किया। जफर भी हंस दिया। फिर एकदम वो संजीदा हो गया। एक बात कहूँ, समान अहमद ने जो आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल संवारने लगा था, उसकी बात पर पलटकर उसे सवालिया नजरों से देखा। जरिश बहुत कम उम्र है, तुम दोनों में उम्र का फर्क ज्यादा है। वो लाउबाली सी है, और फिर तुम्हारी अम्मी, क्या वो मान जाएंगी? वो एक मुखलिस दोस्त की तरह मुकम्मल तौर पर संजीदा था। समान अहमद ने बुर्श ड्रेसिंग पर रखकर उसके करीब बेड पर जगह बनाई। जफर, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। अम्मी किसी भी तरह चचा जान वगैरह की फैमिली का नाम तक सुनने को तैयार नहीं। बरसों की छोटी मोटी चपकलिश को उन्होंने अपनी अना का मसला बनाया हुआ है। अब तो वो जरिश को अपने घर तक में बर्दाश्त करने के रवादार नहीं है। समान अहमद को एक मुखलिस और पुरखुसूस दोस्त की ज़रूरत थी। उसके दिल की हालत से तो वो कब का बाखबर था, मगर जरिश से मुतालिक कतई तौर पर बेखबर था। और अब जबकि उसे हकीकत से आगाही मिली थी, तो समान अहमद ने उसके सामने अपने दिल का दर्द खोल कर रख दिया था। फिर अब छुपाने का फ़ायदा भी नहीं था। वाकई जरिश के सारी सूरत हाल से बाखबर है। पुरसोच अंदाज में उसने समान का चेहरा देखा, जहां अजब मौसम रकम था, खुशी भी और दिलसोजी भी। नहीं, अपने बालों को समेटते समान अहमद ने एक गहरी सांस खारिज की थी। और मैं चाहता भी नहीं हूं कि उसे कुछ इल्म हो। उस वक्त तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक अम्मी राजी ना हो जाए। और अगर अम्मी को इल्म हो गया कि जरिश के मुतालिक मेरे महसूसात इस नौयत के हैं, तो वो ज़मीन और आसमान एक कर देंगी। कभी नहीं मानेंगी, कभी भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ इस तरह हो कि अम्मी खुद अपनी दिली आमादगी और रग़बत से नए ताल्लुकात की इब्तिदा करें। समान ने गुज़िश्ता चंद दिनों की अंदरूनी परेशानी एकदम जफर के सामने ला रखी थी। जिस तरह के तुम लोगों के ख़ानदानी हालात में रंजिशें हैं, उसमें तो आंटी को अपनी पुरानी तमाम रंजिशें मिटाकर खुद पेशरफ्त करना होगी। वो भी निहायत संजीदगी के साथ तबसरा कर रहा था। समान अहमद ने बगौर देखा। उसके चेहरे पर से चंद लम्हे पहले वाली शरारत का अक्स ढूंढने से भी नहीं मिला था। समान के होंठों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट सिरायत कर गई। छोड़ो यार इस टॉपिक को, जितना भी इसे सोचेंगे जहनी इंतशार के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा। फिलहाल तो तुम मुझे आउटिंग के लिए लेकर जाने वाले थे। समान अहमद ने फौरन मौजू बदला था। वो खुद भी इस टॉपिक पर मजीद गुफ्तगू करने के मूड में नहीं था। जफर अहमद ने उसे देखा। उसके चेहरे पर एकदम शरारत का अक्स लहराया था। इश्क ने निकम्मा कर दिया जफर, वरना समान अहमद भी आदमी था बड़े काम का। समान अहमद ने एकदम कहका लगाया। जफर ने अच्छा खासा शेर बर्बाद कर दिया था। वैसे यार, तुम्हें जरिश का नाम छुपाने पर मैं कतई माफ़ नहीं करूँगा। समान ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट को रोका। मसलन क्या करोगे? समान अहमद मुकम्मल तौर पर थोड़ी देर पहले वाली कैफियत से बाहर आना चाहता था। मसलन ये करूँगा कि ये सारे कुशंस तुम्हें दे मारूंगा
और उसके बाद अच्छी सी चाय पीऊंगा और बाद में तुम्हें लेकर आउटिंग पर जाऊंगा। और तुमने चाय का जो ऑर्डर दिया था वो कहाँ है? डॉक्टर जफर ने वाकई बेड पर बिखरे सारे कुशन्स एक एक करके समान अहमद पर उछालने शुरू कर दिए। अरे रे रे, ये क्या कर रहे हो तुम? इंसान बनो। डॉक्टर हो मगर हरकतें देखो अपनी। समान अहमद इधर उधर होकर अपना बचाव कर रहा था, मगर जफर बाज ना आया। तो उसने बजाय इधर उधर भागने के जमीन पर बिखरे कुशन्स उठाकर उसे मारने शुरू कर दिए थे। एकदम ही कमरे में कुशन्स बिखर गए थे। चाय का मैंने सुगरा को पैगाम दे दिया था, फराह ने तैयार करवा ली होगी। तुम बैठो, मैं देखता हूँ। सारे कुशन जफर पर उछाल कर समान अहमद दरवाजे की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो दरवाजा खोलता, आने वाला चाय की ट्रॉली लवाजमात से सजाए दरवाजा धकेल कर कमरे में दाखिल हो गया था। समान अहमद जहां था वहीं खड़ा रह गया। समान अहमद उसे आज पूरे 4 दिन बाद देख रहा था। 4 दिन पहले जब वो उनके यहाँ से गई थी तो किस कदर उदास, मुजमहिल और दिल गिरफ्ता थी, और अब चेहरा बिल्कुल बेरिया था। 4 दिन पहले अम्मी और जरिश के दरमियान होने वाली तल्ख कलामी का शायबा तक ना था। शगुफ्ता तरोताज़ा चांदनी की तरह रोशन चेहरा लिए, अपनी शहद रंग आंखों के दमकते हीरे लिए उसके सामने थे। 4 दिन से वो अम्मी और उसके दरमियान होने वाली तल्ख कलामी को सोच सोच कर सख्त पशेमान हो रहा था। और वो थी कि अस्सलामुअलैकुम। जरिश सऊद अहमद ने उसे एकदम तसव्वुरात की दुनिया से बाहर ला पटका था। समान अहमद एकदम झीम कर सीधा हुआ, सर के इशारे से उसके सलाम का जवाब देकर रुख मोड़ा तो जफर को शरीर नजरों से अपनी जानिब देखता पाकर खजल हो गया। अरे जरिश आई हैं, कैसी है जरिश आप? समान अहमद को शरारती नजरों से ताड़ते वो जरिश की तरफ मुकम्मल तौर पर मुतवज्जे हो गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वो चाय के लवाजमा से सजी ट्रॉली अंदर ला चुकी थी। आराम से ट्रॉली सेट करके वो चाय के लवाजमा टेबल पर सजाने लगी थी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अलबत्ता। जफर ने कनखियों से झीमते हुए समान अहमद को देखा। समान अहमद उसके अलबत्ता पर चटपटा उठा। न जाने अब क्या कह दे। जफर, उसने तंबीही पुकारा था। वो खुलकर हंस दिया। जरिश ने नासमझी में दोनों को देखा और फिर कमरे की हालत को, जहां जा बजा कुशन्स बिखरे हुए थे, बिस्तर पर, कालीन पर, सोफों पर। वरना समान अहमद का कमरा तो बहुत नफासत से टिप टॉप होता था, मगर इर्द गिर्द देखते हुए उसकी नज़र समान अहमद पर आ टिपकी तो उसे याद आया कि वो आज यहाँ क्यों आई है। समान भाई, आपकी तबीयत कैसी है अब? इंतहाई सादा अंदाज में वो पूछ रही थी। समान अहमद सोफे पर बैठते हुए ठटका तो जफर खनखारा। क्यों, मेरी तबीयत को क्या हुआ है? जरिश के इस्तफसार पर जफर खांसने लगा। उसे नज़रअंदाज करके समान अहमद ने संजीदगी से उसे देखा। वो सुबह कॉलेज में फरी जिक्र कर रही थी कि रात आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैंने घर जाकर मम्मा को बताया तो उन्होंने सख्ती से ताकीद की कि मैं पूछूं। आधा घंटा हो गया है मुझे आए हुए। फरा चाय बना रही थी, अभी एक दोस्त की कॉल आ गई थी, मुझे चाय देकर उसने कमरे में भेज दिया। सादगी से मग्गों में चाय उंडेलते हुए उसने बताया। समान अहमद की नजरें उसके सरापे में उलझने लगी। जफर की मौजूदगी का ख्याल करके समान अहमद ने अपनी नजरों का जाविया बदल दिया। कुछ भी नहीं हुआ था, रात बस सर में हल्का सा दर्द था, उसी वजह से फरहीन परेशान हो गई। बिला वजह तुम लोगों को भी परेशान किया। पागल है वो पूरी। समान अहमद ने हंस कर टाला था। पागल नहीं है, वो बता रही थी आप आजकल कुछ परेशान रहने लगे हैं, और तो और छोटी छोटी बातों पर झगड़ने भी लगे हैं। किस चीज़ की टेंशन ले रहे हैं? मम्मा भी यही कह रही थी और अली भी, जबकि मैं खुद भी यही महसूस कर रही हूँ। आप बदलने लगे हैं। कुछ बात है ज़रूर जो हमें नहीं बताएंगे। चाय का मग जफर को देकर उसकी जानिब भी मग बढ़ाए वो बहुत अपनायत और मोहब्बत और खुलूस से पूछ रही थी। समान अहमद ने हैरत से उसे देखा। वो अपने अंदर की जंग तो खुद लड़ रहा था, और फिर इन लोगों को कैसे खबर हो गई कि धोखा है तुम लोगों का? मुझे कोई टेंशन नहीं। शहद जैसी हीरों की तरह दमकती साफ और शफाफ आंखों से खुलूस और अपनायत से नजर चुराकर उसने कहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? हमें कोई वहम नहीं हुआ। इतने सारे लोगों का मुशाहिदा गलत नहीं हो सकता। अब आप पहले वाले समान भाई नहीं रहे, बहुत तब्दील हो गए हैं आप। वो समान अहमद के चेहरे पर अपनी आंखें गाड़े बिल्कुल संजीदा थी। समान हंस दिया, फिर जफर का ख्याल करके लब भींच लिया। जफर भाई, आप ही इनसे पूछे, ऐसी क्या बात है जो ये हमें नहीं बता सकते? कम अज कम अली और फरहा की ही परेशानी का ख्याल कर लें। अब क्यों उससे बिल्कुल खामोश मगर जेर लब मुस्कुराते जफर को भी घसीटा। जफर एकदम सटपटाया था, फिर समान को मायने खेज नजरों से ताड़ते हुए हंस दिया।
बेफिक्र हो जाए जरिश सऊद अहमद, समान अहमद को जो मर्ज लाहक है वो लाइलाज है। हाँ, अगर आप ताउन करें तो ये मसला हल हो सकता है। वो आखिर में शरारत से हंस दिया था। जरिश के खाक पर लेना पड़ा। क्या मतलब? वो उलझी थी। मजाक कर रहा है ये, तुम जाओ। इससे पहले कि जफर मजीद गुलफशानी करता, समान ने फौरन जरिश का ध्यान बटाया था। वो यही समझी कि समान अहमद उसे टाल रहा है। चली तो मैं जाऊंगी, मगर एक बात मेरी सुन लें। आपकी इस तब्दीली से मुतालिक मैं मजीद जान कर रहूंगी। मैं फरा नहीं हूं जो आपकी बातों से बहल जाऊं। बात है ज़रूर, मैं पता करवा ही लूंगी। वो उससे अपने इरादों से खबरदार करती कमरे से चली गई थी। समान ने उसके जाते ही जफर को घूरा। तुम्हारी जुबान बंद नहीं रह सकती थी। मैंने क्या किया है? एक ही घूर में चाय खत्म करते उसने मासूमियत से पूछा था। समान बेचारगी से उसे देखते उस लम्हे को पछताया जब डायरी डॉक्टर जफर के हाथ लगी थी। पहले तो वो उसके इश्क के फर्जी कयाफे लगा रहा था, मगर अब तो उसके पास जरिश का पूरा हवाला मौजूद था। दाखिली दरवाजा धकेल कर वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ था, सीधी नजर गहरे पर्पल दुपट्टे के हाले से अपनी झप दिखाते चेहरे पर टिक गई थी। वो बिलाशुबा हसीन थी, मगर इस वक्त वो इस लिबास में हसीन तरीन लग रही थी। ओह, यहाँ तकरीब शुरू हो चुकी है। उसने कलाई पर बंधी घड़ी देखी थी। एयरपोर्ट से यहाँ तक पहुंचने में उसे पूरा 1 घंटा सर्फ हुआ था। यकीनन अब तक नवाज उसकी आमद से मायूस होकर उससे लानत मलामत का फरीजा अंजाम दे रहा होगा। सभी जाने पहचाने चेहरे थे। तीनों चचियां थीं, चचा जान थे, उनकी आल औलाद थी। अच्छा खासा हुजूम था। हर कोई महवे गुफ्तगू था। घरेलू सतह पर मुनक्किद होने वाली सादा सी तकरीब, मगर फिर भी रिश्तेदार अहबाब दिखाई दे रहे थे। अभी तक किसी ने भी शारिक जमान की आमद पर ध्यान नहीं दिया था। शारिक ने यूं ही खड़े खड़े नवाज फारूक को ढूंढना चाहा। इर्द गिर्द का जायजा लेते तलाश करते उसकी नजर बाईं जानिब रखे सोफे पर टिक गई थी। इससे पहले कि वो पेशकदमी करता, पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। शारिक जमान ने फौरन रुख बदला। शुक्र है तुम भी पहुंचे हो। 2 दफा ताईजान का फोन आ चुका है। हर दफा तुम्हारे पहुंचने से मुतालिक पूछ रही थी। नवाज भी इंतजार कर करके अभी 5 मिनट पहले ही यहाँ पहुंचा है। कम से कम किसी तकरीब पर ही दस्तयाब हो जाया करो। नबील उसे देखते ही नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो गया था। शारिक धीमे से मुस्कुरा दिया। आई एम सॉरी, सीधा एयरपोर्ट से यहाँ पहुंचा हूँ। क्या करूँ, काम ही ऐसा था, वरना मैं कभी ना जाता। नबील के इस मोहब्बत भरे शिकवे पर वो फौरन शर्मिंदा हो गया था, तो नबील मुस्कुरा दिया। चले आए, अंदर चलते हैं। वो अभी तक दरवाजे की दहलीज पर ही खड़ा था। नबील के कहने पर उसने फौरन दहलीज छोड़ दी और कदम अंदर की जानिब बढ़ा दिए। सबसे सलाम दुआ करके वो नवाज की तरफ बढ़ा और हाथ में लाना चाहा तो उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। चेहरे पर खफगी और नाराजगी का तासुर भरपूर था। मुझसे मिलने या बात करने की जरूरत नहीं। कल से मैं तुम्हारे नंबर पर ट्राई कर रहा हूँ, और तुम हो कि इस वक्त जब सब कुछ तय हो चुका है अब अपना चेहरा दिखा रहे हो। नवाज के लहजे में बेपनाह खफगी थी। उसने शारिक का मुसाहिफे के लिए बढ़ा हुआ हाथ भी झटक दिया। आई एम सॉरी यार, रियली सॉरी। मेरे इतने अच्छे दोस्त की मंगनी हो और मैं ना आऊँ, हो ही नहीं सकता। एयरपोर्ट पर देर हो गई थी, और फिर यहाँ तक आते आते ट्रैफिक ने भी तुम्हें शिकवा करने का हक दे दिया। आई प्रॉमिस तुम्हारी शादी पर जल्दी आऊँगा। मुआज़रत करते करते वो गैर संजीदा हो गया था। नवाज ने उसे घूरना चाहा, मगर उसको मुस्कुराते देखकर वो भी हंस दिया। शारिक ने शुक्रिया अदा करते उसको गले से लगा लिया था। तुम बैठो, मैं ज़रा तुम्हारी मंगेतर साहिबा का भी कर्ज उतार दो, फिर तुम्हारे पास बैठता हूँ। शारिक जमान नवाज से अलहदा होते हुए उस जानिब बढ़ गया जिधर सोफे पर नवेरा सजी संवरी बैठी हुई थी। छोटी चची जान उसकी बाईं जानिब थी, जबकि खालदा चची दाईं जानिब। अस्सलाम वालेकुम। दोनों खवातीन ने उसकी जानिब निगाह उठाई। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी देर कर दी आने में। बड़ी आपा के कई फ़ोन आ चुके हैं, बार बार तुम्हारा पूछ रही थी। छोटी चच्ची ने शारिक के सर पर प्यार करते हुए कहा तो वो खफीफ सा हंस दिया। मैंने रास्ते में अम्मी जान को फ़ोन कर दिया था। खालदा चची से भी प्यार लेते उसने कहा तो नवीरा ने हल्का सा सर उठाकर शारिक जमान को देखा था। कोट सूट में मलबूज अपने दराज कद समेत इंतहाई वजीह लग रहा था। नवीरा को अपने इस कज़न में एक अजीब सी खलिश छुपी महसूस होती थी। इस वक्त भी वो बज़ाहिर मुस्कुरा रहा था, मगर उसकी मुस्कुराहट भी अजब बनावटी सी थी, या शायद कुछ कमी थी। कैसी हो नवीरा तुम? उससे अपनी जानिब मुतवज्जे पाकर शारिक ने पूछा तो नवीरा ने एकदम सटपटाकर चेहरा झुका लिया। बहुत कम शारिक जमान उससे बराह रास्त मुखातिब करता था।
अजीब सी झिझक थी, ना सिर्फ उनके दरमियान थी बल्कि खानदान का हर फर्द शारिक जमान के मामले में बहुत हसास हो जाता था। उसे मुखातिब करते हुए 100 बार सोचता था, बेतकल्लुफी में भी तकल्लुफ पिन्हा रहता। जी ठीक हूँ, नवेरा ने झुके सर से ही जवाब दिया था। शारिक जमान ने गौर से उसे देखा। चेहरे पर गहरे पर्पल दुपट्टे के हाले में उसका खूबसूरत चेहरा मजीद गुलरंग हुआ जा रहा था। चंद पल के लिए तो शारिक जमान की नजरें उस चेहरे से हटना भूल गई थी, जैसे कह रही हूं हमें यहां से हटना गवारा नहीं। बैठो बेटा, मैं जरा मेहमानों को देख लूं। वो खालदा चच्ची की आवाज पर एकदम चौंक उठा था। अजब सी लहर अंदर तक उतरी थी। खालदा चची उसे कहकर आगे बढ़ गई। छोटी चची तो पहले ही उठ चुकी थी। शारिक जमान ने एक नज़र फिर देखा। झुका हुआ सर उसके अंदर एक अजीब सी लहर सिरायत करता चला गया था। अच्छी लग रही हो, अपने एहसासात से घबराकर शारिक ने एकदम खुद को टोकते हुए कहा था। नवीरा का गुलनार चेहरा मजीद दो आश्ता हो गया। वो उलझ कर रह गया, फिर बगौर जायजा लिया। शारिक जमान के लिए ये बड़ा दिलचस्प लम्हा था। फिर हंस दिया। ये तुम्हारा गिफ्ट है, पता नहीं तुम्हें पसंद आता है कि नहीं। अम्मी जान की हिदायत पर यह खरीद लिया था। अपनी पॉकेट से एक छोटा सा मखमली केस निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते उसने कहा, तो नवीरा ने हैरत से सर उठाकर उसे देखा। जी? शारिक जमान के चेहरे पर अजब सा तासुर था। वो सिर्फ एक लहजा देख पाई। क्या गिफ्ट है भला, जरा हम भी देखें। शारिक जमान हाथ फैलाए खड़ा था, तभी पीछे से नबीला भाभी ने आकर पूछा। शारिक ने वही हाथ उनकी तरफ बढ़ा दिया। देख लें। शारिक का अंदाज जान छुड़ाने वाला था। भाभी हंस दी। उन्होंने गिफ्ट लेकर फौरन केस खोला था। खूबसूरत नगों से मुज़य्यन गोल्ड का ब्रेसलेट अपनी तमाम तर खूबसूरती के साथ सामने था। अरे इतना खूबसूरत! भाभी एकदम फिदा हो गई थी। दीगर कजन्स लड़कियां उनके गिर्द जमा होने लगी। अरे नवीरा, मुझे यकीन नहीं आ रहा ये शारिक लाया है। भाभी को बेलाग तबसरा करने की आदत थी। बगैर किसी की परवाह किए उन्होंने फौरन कहा था। नवीरा जहां खाइफ हुई थी, शारिक भी सटपटाकर पीछे हटा था। अम्मी जान की हिदायत थी, फिर जद्दा से रिफत बाजी भी कह रही थी। उन्हीं के मशवरे पर ख़रीदा था। पसंद आए तो ठीक, वरना मौसरत। एकदम अपने लिए दिए अंदाज में कहकर वो वहां से निकल आया था। इससे पहले वो वापस नवाज की जानब कदम बढ़ाता, दम नज़र एक जानिब खिड़की के पास बेहिस्सो हरकत खड़े रजा हमीद की जानिब उठी थी। वो नवीरा की जानिब टिकटिकी बांधे देख रहा था। शारिक जमान ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपनी भाभीियों रिमशा और दीगर लड़कियों में घिरी नवीरा को देखा। एकदम शारिक ठटका और फिर पलटकर रजा की तरफ नजर की। वो अब भी उसी तरह खड़ा था, अपने इर्द गिर्द से बेखबर। शारिक नवाज की तरफ बढ़ने के बजाय उसकी तरफ आ गया। रजा, खैरियत? क्या हुआ है? उसके सर पर पहुंचकर उसने पूछा। वो उसकी आवाज़ सुनकर यूं झटका जैसे उस मंजर में दाखिल हुआ हो। क्या हुआ यार? वो खाली खाली नज़रों से शारिक को देख रहा था। शारिक ने आज से पहले उसे कभी इस हालत में नहीं देखा था। कुछ हैरान होते उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो जैसे हवासों में आ गया। न, न नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ मुझे। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। एकदम अपने चेहरे पर दोनों हाथ मलते जैसे पिछले असर को ज़ायल करते उसने कहा था। शारिक कुछ उलझा, फिर उसकी सुर्ख अंगारा आंखों में झांका। वो नजरें फेर गया। कुछ नहीं हुआ भाई, बस हल्का सा बुखार है। अपने होठों को काटते उसने सर झुका कर कहा था। अच्छा, तभी कहूँ तुम्हारी कज़न कम दोस्त ज्यादा की मंगनी हो रही है और तुम मजनू की तरह होशो हवास गुम किए दुनिया माफिया को भुलाई यूं रह नहीं सकते। शारिक ने हंस कर कहा तो वो अपने होंठ मस्जिद को चलने लगा। फिर शारिक ने उसकी कलाई थामी तो वाकई परेशान हुआ था। वो बुखार से फुनक रहा था। वाकई यार, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। तुम यहाँ खड़े हो, अपने बिस्तर पर आराम करना चाहिए था तुम्हें। इस तरह तो तबीयत बिगड़ भी सकती है। इंतहाई तशवीश से वो कह रहा था। रजा के चेहरे पर एक थकी मांदी मुस्कुराहट उभर आई। बस मैं घर ही जाने वाला था। उसने तेजी से अपनी कलाई छुड़वाई। हाँ, तुमको बिस्तर पर लेटकर आराम करना चाहिए। उसके कंधे पर थपकी देते शारिक ने कहा तो वो एकदम तेज तेज कदम उठाता दरवाजा पार कर गया था। शारिक नवाज के पास तन्हा बैठा हुआ था। ये सब इतनी जल्दी हो गया? मैंने तो हफ्ता पहले से रिश्ता तय होने की खबर सुनी थी, अब एकदम यूं मंगनी। आखिर बात क्या है? खैरियत है ना? शारिक ने पूछा था तो वो हंस दिया। खैरियत वैरियत ही नहीं, सब कुछ ठीक है। बस अम्मी और बहनें ये सब कुछ जल्दी करना चाहती थी, उसने आराम से बताया।
اور تمہاری اس کزن، کیا نام ہے اس کا؟ شارق نے ذہن پر زور دیا تھا۔ ہاں یاد آیا، رومیسا، اس کا کیا بنا پھر؟ بڑے نیک جذبات رکھتی تھیں وہ تمہارے لیے۔ شارق زمان نے ازرہ مذاق پوچھا تھا، بلکہ چھیڑا تھا۔ امی نے میرے سامنے رومیسا اور نویرا دونوں کے نام رکھے تھے۔ بظاہر دونوں ہی سلجھی ہوئی بادب لڑکیاں ہیں، لیکن میں نے امی کے سامنے نویرا کا نام منتخب کیا تھا۔ میں اپنی 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ ایسے میں امی جیسی لڑکی کی ڈیمانڈ کرتی تھیں۔ وہ ساری خوبیاں نویرا میں تو تھیں، مگر رومیسا نے ایک آزاد خیال اور ہم سے مختلف ماحول میں پرورش پائی ہے۔ وہ شاید ہمارے خاندانی طور طریقوں کے مطابق خود کو نہ ڈھال پائے، جبکہ مجھے صرف اور صرف اس خاندان، اپنے گھر کی فلاح و بہبود چاہیے تھی۔ اسی لیے میں نے نویرا کا نام لے لیا تھا۔ امی کو اپنی بھتیجی کے ریجیکٹ ہونے پر دکھ تو ہوا تھا، مگر جب میں نے اپنے خیالات سے انہیں آگاہ کیا تو وہ دل سے راضی ہو گئی تھیں۔ اس طرح یہ منگنی طے پا گئی۔ آرام سے اس نے چند الفاظ میں سب کچھ سنایا۔ تم خوش ہو؟ شارق زمان نے اسے کھوجتی نظروں سے دیکھا تو وہ کھل کر مسکرایا۔ نویرا کسی بھی شخص کا آئیڈیل ہو سکتی ہے، پڑھی لکھی، باحیا، با کردار، سلجھی ہوئی اور تہذیب یافتہ۔ ہر خوبی تو اس میں موجود ہے، پھر میرے رنجیدہ ہونے کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا۔ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ بڑی چیز ہو تم۔ شارق نے بھی مسکرا کر ایک مکہ جڑ دیا تھا۔ قیصرہ بیگم کی طبیعت خراب تھی۔ شائستہ بیگم ان کی عیادت کو آئی ہوئی تھی۔ یوں تو قیصرہ طاہرہ بیگم کی بڑی بہن تھی، مگر رشتے میں قیصرہ ان کی چچا زاد بہن بھی لگتی تھی۔ طاہرہ سے لاکھ شکوے شکایتیں ہوتی، مگر رشتہ داری ایسی تھی کہ ہر ایک سے ملنا ملانا رہتا تھا۔ تم ٹھہرو، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ شوفر کو ہدایت دے کر وہ گیٹ کھول کر اندر چڑھ تھی۔ راہداری میں انہیں کوئی شخص دکھائی نہیں دیا تھا۔ وہ سیدھی اندرونی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ داخلی دروازہ کھول کر قدم اندر رکھتی، آنے والی آوازوں نے ان کے قدم جکڑ لیے تھے۔ کیا کروں آپا؟ مجبوری سی مجبوری ہے۔ وہ لڑکی تو میرے سینے پر مونگ دلنے کو کافی ہے، اوپر سے سامان کے باپ کی ضد۔ وہ ہیرے جیسا بیٹا ہے میرا، اسے اس چڑیل کے لیے کیسے ضائع کر دوں؟ سعید احمد کو تو بھتیجی کی محبت کی تپ چڑھی ہوئی ہے۔ روز میرا ضبط آزما رہا ہے وہ شخص۔ میرا بس نہیں چل رہا کہ کچھ کر بیٹھوں۔ طاہرہ بیگم انتہائی نفرت سے کہتی رو بھی رہی تھی۔ شائستہ بیگم الجھ کر رہ گئی۔ گفتگو کس کے متعلق تھی کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تو تم اس کمبخت کو گھر میں گھسنے ہی کیوں دیتی ہو؟ میں تو سچ کہوں گی، یہ تمہاری ڈھیل ہے، ورنہ کس کی مجال ہے جو تمہاری مرضی کے بغیر تمہارے گھر میں قدم بھی رکھ لے، اور وہ بھی چھٹانگ بھر کی زرش۔ قیصرہ بیگم کے لہجے میں انتہائی حقارت تھی۔ شائستہ بیگم کے دل پر ایک چوٹ سی لگی تھی۔ ایک دم یوں لگا کسی نے دل مٹھی میں لے کر بھینچ لیا ہو۔ اوہ، تو موضوع گفتگو یہ ہے۔ وہ دکھ سے کٹ کر رہ گئی۔ میرے نصیب برے ہیں، مجھے تو زندگی گزارنے کا سلیقہ ہی نہیں آیا، ماں باپ کے گھر میں بھی اور پھر سسرال میں بھی۔ اوپر سے سعید احمد جیسے شخص کے ساتھ نے زندگی سے بھی بیزار کر دیا ہے۔ باپ تو باپ، اولاد تک مجھے کچھ نہیں سمجھتی۔ پتہ نہیں شائستہ کے ہاتھ میں ایسا کون سا جادو ہے، میری ساری اولاد چچی جان کے گنگاتی پھرتی ہے۔ فرح تو پھر میری نظر سے ڈر کر کچھ اثر کر لیتی ہے۔ علی تو بالکل ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، منہ پھٹ اتنا کہ خدا کی پناہ۔ سامان کی ہر بات ہی نرالی ہے، جب بھی کوئی بات کہوں گی چپ چاپ سر جھکا کر سنتا رہے گا، نہ کوئی ہاں اور نہ کوئی نہ، کرنا وہی ہے جو چچا چچی یا باپ نے کہنا ہے۔ وہ اب زور و شور سے رو رہی تھی، بلکہ دل کے پھپولے پھوڑ رہی تھی۔ شائستہ بیگم کے دل میں ایک اشتعال کی گہری لہر اٹھی تھی، مگر وہ بڑے ضبط کے ساتھ اپنے غصے کو پی گئی۔ میں اب بھی کہتی ہوں، ابھی بہت وقت نہیں گزرا۔ سعید احمد کو اعتماد میں لو، اس سے اپنی طرف راغب کرو، اولاد بھی تمہارا کہنا مانے گی۔ ویسے سامان احمد تو بڑا سعادت مند بچہ ہے، جو کہو گی کبھی انکار نہیں کرے گا، ماں والا روب رکھو۔ قیصرہ بیگم طاہرہ کو سمجھا رہی تھی۔ شائستہ بیگم کا دل قیصرہ کی جانب سے ایک دم بھر آیا۔ یہی تو دکھ ہے آپا، وہ زبان سے کچھ نہیں کہتا، مگر اس کی ایک نظر ہی ایسی ہوتی ہے کہ مجھے اسے کچھ کہنے کی، اپنے فیصلے سے آگاہ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ وہ تو پورے کا پورا باپ کے کنٹرول میں ہے۔ اوپر سے اب تو دل کو یہ جو نیا خدشہ لاحق ہو گیا ہے، میری تو راتوں کی نیند ہی اڑ گئی ہیں۔ سوں کرتی وہ بتا رہی تھی۔ شائستہ بیگم نے ہونٹ کچلے۔ اندر جو گفتگو ہو رہی تھی وہ اس قابل تو نہیں تھی کہ اب وہ اندر جائے، مگر واپس جانے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ وہ ششپنج میں گرفتار ہو گئیں کہ کیا کریں۔ تم نے سعید احمد سے میری فوزیہ کی بات کی؟
समान अहमद के सिलसिले में? वो अंदर कदम बढ़ाने को ही थी कि कैसरा की बात सुनकर फिर अपनी जगह पर ही जम गई। कहाँ आपा, मौका ही ना मिल सका। सईद अहमद ने तो दो टोक कह दिया है कि जरिश के अलावा समान अहमद की ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं आ सकती। 100 जतन करके उस्मान से हादिया का पीछा छुड़ाया था। वो तो शुक्र हुआ कि उस्मान ने खुद ही जुबारिया का नाम लेकर अपने बाप की जुबान बंद कर दी थी। फिर वक़ार और हादिया की शादी होते ही मैंने सुख का सांस लिया था। पीछे रह गई तो नौशीन। उसकी तरफ से मुझे फिक्र थी, मगर उसका अफवान से रिश्ता तय होते ही ये फिक्र भी ख़त्म हो गई। मगर पता नहीं था कि सईद अहमद तीसरी का नाम लेकर मुझे खामोश कर देंगे। ऊपर से समान अहमद, मेरा तो सोच सोच कर दिमाग फटने लगा है। लाख मैंने सईद अहमद को समझाया कि वो कम उम्र है, ना समझ है, समान से मुख्तलिफ है, मगर उस अल्लाह के बंदे की भी एक ही रच है, जरिश नहीं तो कोई भी नहीं। मैंने अपनी माँ को जुबान दी थी कि अपनी भाई की बेटियों से किसी एक को समान की दुल्हन ज़रूर बनाऊंगी। लो भला, माँ तो मर गई और ये शाइस्ता की लड़की मेरी जान का आज़ार बन गई है। सच कहते हैं, जैसी माँ वैसी बेटी। माँ सऊद अहमद को ही ले उड़ी और बेटी मेरे बेटे की अकल गुम कर रही है। शाइस्ता बेगम के लिए अब मजीद सुनना दो भर हो गया था। पहले तो जी चाहा कि खामोशी से वापस पलट जाए, मगर फिर कुछ सोचकर दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हो गई। अस्सलामुअलैकुम। दरवाजे की आवाज़ सुनकर दोनों पलटी थी, मगर अपने सामने शाइस्ता को देखकर दंग रह गई। शाइस्ता का चेहरा सपाट था। साफ जाहिर हो रहा था कि वो सब कुछ सुन चुकी हैं। दोनों के यूं रंगे हाथों पकड़े जाने पर रंग ही उड़ गए थे। वालेकुम अस्सलाम। अरे शाइस्ता ही है, आओ भाई, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कैसरा बेगम फौरन संभली थी। शाइस्ता बेगम का जी चाहा कि उन जैसी अय्यार औरत का मुंह नोच लें, मगर ऐसी जज्बातियत उनकी फितरत में न थी। होंठ भींच कर उन्होंने ताहिरा को देखा, जो गैज भरी निगाहों से उन्हें देख रही थी। आई तो मैं आपकी तबीयत मालूम करनी थी, मगर यहाँ आकर जो कुछ सुना है, दिल तो चाह रहा है कि अपनी बेटी के मुतालिक इस तरह की वाहियात गुफ्तगू करने वाले का मुंह नोच लो। मगर कैसरा आपा का अदब व लिहाज आड़े आ जाता है। काश आप सिर्फ ताहिरा की बहन होती तो मेरे लिए मामला साफ करना आसान होता। मसला तो ये है कि आप मेरे चचा मरहूम की बेटी हैं। ताहिरा तो ये सब रिश्ते फरामोश कर चुकी हैं। आप तो याद रखें, अपनी बेटी की जगह बनाने के लिए किसी की बेटी पर इस तरह के इल्ज़ाम तराशी करते हुए शर्म आनी चाहिए। उनका दिल लहू लहू हो रहा था। जरेशो ने किस हद तक अजीज थी, काश कोई उनका दिल चीर कर देखता। उन्होंने तो कभी उसे फूलों की छड़ी से भी नहीं छुआ था। उसके बाप ने तो उसे हथेली का छाला बना रखा था। और ये लोग। शाइस्ता की बातें सुनकर जहां ताहिरा ने नजरों का जाविया बदला, वहां कैसरा बेगम की आंखों में एकदम गुस्सा छलकने लगा। होश में रहकर बात करो तुम शाइस्ता। उन्हें तो गुस्सा था। वो तन से हंस दी। होश में ही तो हूँ। ताहिरा की बदौलत आज तक मैं सईद भाई के सामने शर्मसार हूँ। कभी सर उठाकर उनसे बात करने की जुर्रत नहीं कर सकी। और ये औरत है कि अपना घर तो बर्बाद कर चुकी है, अपनी औलाद के साथ साथ मेरी औलाद को भी बाइसे आज़ार बनाती जा रही है। शाइस्ता बेगम बगैर किसी लगी लिपटी के कह गई। अपनी औलाद से बढ़कर कोई चीज़ अहम नहीं होती। इस वक्त उनकी भी यही कैफियत थी। शाइस्ता। ताहिरा एकदम चीख उठी थी। शाइस्ता का घर बर्बाद कर लेने का ताना सीधा दिल पे लगा। दिल से खून रिसने लगा था। इतनी तकलीफ क्यों हो रही है तुम्हें? सच कह रही हूँ मैं। मेरा शौहर तो सारी उम्र अपनी मुट्ठी में रखा। मेरे बेटे को भी तुम माँ बेटी वर्गला रही हो। मुझे आइंदा आईना दिखाने से पहले तुम अपनी करी सूरत तो देखो। वो तकलीफ से बिलबिला उठी। जो मुंह में आया कह दिया। शाइस्ता बेगम इस्तेहज़ाया हंस दी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पहले तुम अपने गिरेबान में झांको, फिर मुझे इल्ज़ाम देना। मैं तो अम्मा जी के वादे की पाबंद हूँ, वरना तुम्हें ऐसा जवाब देती कि सारी उम्र पछताती। मुझे रिश्तों की मोहब्बतें रुलाती हैं, वरना मेरी बेटी तुम जैसी औरत के काबिल कहाँ है। मुझे तो तुम्हारी औलाद को देखकर दुख होता है, दिल खून के आंसू रोता है। ना जाने तुम कैसी औरत हो जो अपनी औलाद की खुशियों को निगलने को बेताब हो। हमें तो बख्शो बीबी, अल्लाह ही तुम्हें हिदायत दे। हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी औलाद के हक में भी। वो ताहिरा बेगम को साफ साफ सुनाकर बगैर एक सेकंड ज़ाया किए वहाँ से निकल आई थी। ड्राइवर अभी भी वहीं था। उन्हें आता देखकर उसने मुस्तादी से दरवाज़ा खोला। वो अंदर बैठ गई। दिल अंदर ही अंदर तकलीफ से बिलबिला रहा था। जरिश। उनके होंठ से बे आवाज़ सिसकारी निकली। अम्मा जी, आपके वादे ने हमें किस अजाब से दो चार कर दिया है। काश आप देखती। उनकी आंखें जलथल हो रही थी।
वो कमाल जब्त से आंखों को छलकने से बाज रख रही थी। और समान अहमद, उनका ख्याल भटक रहा था। जहन दो हिस्सों में बंटने लगा। एक तरफ जरिश थी, उनकी अपनी बेटी, उनकी जिंदगी, उनकी चहीती, और दूसरी तरफ समान अहमद, उसकी बेरंग व बेकैफ जिंदगी, उसकी आंखों के जलते दिए और अनकही ख्वाहिशें। कैसी बेहिस माँ हो तुम ताहिरा। मैं चची होकर तुम्हारे बेटे की आंखों के जलते दियों की रोशनी महसूस कर गई हूँ, और तुम हो कि उन्हीं दियों को बुझाने को तैयार खड़ी हो। काश मैं सिर्फ जरिश की माँ होती, सईद अहमद की मान भरी बहन और समान अहमद की तिश्नगियों की राजदान न होती, तो मैं अपनी बेटी की बका के लिए आराम से फैसला करके एक तरफ हो जाती, तो आज ये तकलीफ अजियत तो न सह पाती। उनकी आंखों के किनारों से कई साफ शफाफ मोती निकलकर रुखसारों पर बहते उनके गिरेबान में जज्ब होते चले गए थे। न जाने कमरे में इस कदर हब्स था या फिर उसके अंदर। उस गहरी हर सूछाई तारीकी में वो खिड़की खोले गहरी गहरी सांस ले रहा था, मगर अंदर की हिद्दत कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। न जाने कैसी आग थी जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। दर्द था कि हद से बढ़ता ही जा रहा था। अजियत थी कि बेहदो हिसाब। गम था कि न मिटने वाला। चंद पल रजा हमीद ने जोर जोर से सांस लेने की कोशिश की थी, मगर अंदर के घुटन जूं की तूं थे। उसने अपने कदम खिड़की से हटाकर बिस्तर की जाने बढ़ाए थे। इस्तेराब, बेचैनी, बेकरारी और परेशानी से एक के बाद एक दूसरी दराज खोलता चला गया था। पिछले एक हफ्ते से उसके अंदर से धुआं उठ रहा था जो उसका सब कुछ जलाता जा रहा था। उसके अरमान, उसके अनदेखे ख्वाब, उसके ख्वाहिशों के तितलियों के नाजुक पर और मीठे मीठे सपने। खिड़की से दूसरी तरफ का मंजर बहुत साफ और शफाफ था। गहरी तारीकी थी, मगर उस तारीकी में अव्वलीन चांद की किरणें बहुत मध्यम रोशनी बिखेर रही थी। वो पलकें झपकाए बगैर चांद को देखता रहा, हत्ता के नामुकम्मल चांद में एक अधूरा सा अक्स झिलमिलाने लगा। नवीरा एहसान, उसके लबों से ये नाम निकला था और फिर दर्द बनकर उसके इर्द गिर्द फैलता चला गया था। वो अपने दिल की इस अनोखी जसारत पर खुद भी हैरान था, पशेमान था। एक दर्द के लामत्ताही सहरा में भटक रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उफ मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया। वो तो मेरे लिए बहुत मुहतरम थी, बहुत अजीज। फिर ये कैफियत कौन सी सजा है मेरी। बालों को मुठियों में जकड़ते जकड़ते वो अजियत की इंतहा पर था। अपने दिल के इस दोखलेपन के पुरफरेब धोखे पर, अपने दिल के जुर्म को नाकाबिले मुआफी करार देकर खुद को सजा पर सजा दे रहा था। अंदर सीने में जलने वाली आग इस तरह बुझने वाली न थी। आई एम सॉरी नवेरा, मैं अपने आप को कैसे समझूं। तुम तो मेरे लिए 22% एहतराम थी। ना जाने ये दुख का सहरा कहाँ से उभर आया है। मैं तो अपने आप से नजरें मिलाने के काबिल नहीं हूँ। वो जज्बातियत से कुड़ कर रह गया। रात का 1 बज रहा था। क्लॉक पर एक नज़र डालकर वो बाथरूम में घुस गया। चेहरा जल रहा था। नजरों में बार बार दुल्हन बनी सजी संवरी नवेरा का हसीन चेहरा घूम रहा था। बुखार जूं का तू था। अपने अंदर के घुटन कम करने को उसने नल खोलकर पानी हथेलियों में भर भर कर चेहरे पर छपाके मारना शुरू कर दिए थे। रजा हमीद का यह शुगल न जाने कब तक जारी रहता। मौन दरवाजे पर दस्तक हुई थी। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, फिर दस्तक होती चली गई। नल बंद करके तौलिए से मुंह रगड़ते वो बाहर निकला। इस वक्त खुदा खैर करे। दस्तक अगरचे धीमी आवाज में एहतियात से दी जा रही थी, मगर रात के इस पहर वो कुछ परेशान सा हो गया था। कौन है? उसने पूछा, मगर दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। सिर्फ दस्तक हुई थी। वो पहले से ज्यादा परेशान हुआ था, साथ हैरान भी। उसने दरवाज़ा खोल दिया था, लेकिन दरवाजे पर मौजूद शख्सियत को देखकर उसका मुंह हलक तक कड़वा हो गया था। तुम इस वक्त? खैरियत? अंदर की कड़वाहट उसकी जुबान में भी आ गई थी। पिछले 1 हफ्ते से लड़की आसेब की तरह उसके पीछे लगी हुई थी। वो बारहा उसे झिड़क चुका था, इंतहाई बेइज्जत कर चुका था, और न जाने उस लड़की के क्या इरादे थे। और अब इस वक्त उसकी आमद उसके अंदर खतरे का अलार्म बजा था। तुम्हारे कमरे की लाइट रोशन थी। मैंने सोचा तुम्हें देख लूं, कहीं बुखार से ज्यादा तबीयत खराब ना हो गई हो। वो वाकई मुतफक्किर थी, मगर रजा हमीद पर कुछ असर न हुआ। शुक्रिया इस नवाजिश का, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। दिल तो चाहा कि एक कड़वा सा जवाब देकर रिमशा जावेद को अपनी नजरों से ओझल कर दे, मगर उसका लिहाज और मुरव्वत आड़े आ गया था। मगर तुम जाग क्यों रहे थे? वो कदम कमरे में रख चुकी थी। रजा ने उसे घूरा। पागल कुत्ते ने काट लिया था इसलिए।
बचपन से लेकर अब तक ये लड़की उसे इंतहाई जहर लगी थी, नफरत सी हो गई थी, मगर वो भी ढीठ थी। रजा हमीद को सुलगते देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी। नवेरा याद आ रही है? बड़े आराम से वो पूछ रही थी। रजा हमीद को लगा जैसे उसने उस पर तेजाब की पूरी बोतल उंडेल दी हो। शट अप, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, दबी आवाज में वो फुनकारा। न जाने उसके जज्बों से आ गई उस पागल लड़की को कैसे हो गई थी। एक हफ्ते से रजा हमीद की ये हालत थी और वो एक हफ्ते से उसे जिज कर रही थी, और अब रात के इस पहर। मुझे शटअप करवा कर तुम किसको धोखा दोगे, खुद को या मुझे? वो सुलग रही थी। तुम जाती हो या मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकालूं? वो बमुश्किल उसे बर्दाश्त कर रहा था। अगर वो उसकी मामूजाद न होती तो वो वाकई उसे धक्के देकर न सिर्फ अपने कमरे से निकालता बल्कि अपने घर से भी बाहर करता। बाद में घर वाले जो मर्जी सलूक करते। तुम मुझे क्या निकालोगे? मैं तो खुद चली जाऊंगी, मगर याद रखना, नवेरा का भूत सर से उतार लो। कुछ नहीं तो कम से कम अपनी और उसकी उम्र का ही लिहाज कर लो। अपने से बड़ी आपा जी से इश्क फरमा रहे हैं मुहतरम। रजा हमीद का एहतकामेज अंदाज देखकर वो भी सुलग उठी थी। रजा हमीद से उसके अल्फाज बर्दाश्त नहीं हुए थे। शट अप! रजा ने खींच कर तमाचा उसके मुंह पर दे मारा था। अंदर जो दिल जल रहा था उसकी तपिश किसी न किसी तरह तो निकलनी थी। रेमशा थप्पड़ खाकर एकदम साकित रह गई थी। बेयकीनी से रजा हमीद को देखा। वो लाख नफरत का इजहार करता था मगर कभी हाथ उठाने की नौबत ही नहीं आई थी, और अब वो फूट फूट कर रोने लगी। रजा हमीद गुस्से भरी नजरों से उसे देख रहा था। इस वक्त दिमाग कुछ भी सोचने समझने के काबिल न था। ये भी नहीं कि रात के इस पहर उनका शोर सुनकर कोई उधर भी आ सकता है। तुम फौरन मेरे कमरे से निकल जाओ, बस फौरन, वो कह रहा था। कमरे में चक्कर लगाने लगा। तुम पछताओगे देखना। तुम मुझे रुलाकर तुम कैसे सुखी रह सकते हो? तुम तो अपनी कैफियत से अब बाखबर हुए हो। मैं तो उसी दिन से जान गई थी जब मुस्तकिल तुम्हारे घर रहने आई थी, और वो पाक दामन कैसे बड़ी आपा बनकर तुम्हें वरगला गई। कमीनी, जलील। रुखसार आग की तरह दहक रहा था और उसी हिसाब से उसकी जुबान शोले उगलने लगी थी। रजा ने से मजीद बर्दाश्त न हुआ। वो इश्तियाल में आगे बढ़ा था। बहुत हो गई, दफा हो जाओ तुम यहाँ से। आइंदा मेरे सामने अपनी शक्ल लेकर ना आना, वरना कुछ कर बैठूंगा मैं। मुझे तुम जो मर्जी कहो, नवेरा के लिए एक लफ्ज भी नहीं। उसकी बारूद की तरह उगलती जुबान देखकर रजा हमीद ने उसका बाजू दबोच कर कमरे से बाहर धकेल दिया। इससे पहले कि वो संभलती, रजा ने खटाक से दरवाज़ा लॉक कर दिया। बदतमीज, स्टूपिड। उसने नवेरा को भी गाली दी थी। रजा का बस नहीं चल रहा था कि उसका कत्ल कर दे। कमरे की जो भी चीज़ हाथ लगती गई वो तहस नहस करता चला गया। मामा के लाख मना करने के बावजूद वो आज फिर यहाँ थी। इस घर से जाने को उसका जी नहीं चाहता था। ताई जान की बेइंतहा नफरत के बावजूद हर दफ़ा वो यहाँ चली आती थी, और यहाँ आने के बाद वो जिस कदर जलील होती थी ये सिर्फ वही जानती थी, या फिर फरा और अली। ये उन लोगों की मोहब्बतें ही तो थीं जो हर बार उसे यहाँ खींच लाती थीं। फिर ताया जान का सिर्फ एक दफ़ा मोहब्बत से फ़ोन करना होता था और वो दौड़ी चली आती। पिछली हर जिल्लत भुलाकर, हर बात फरामोश किए वो फिर यहाँ होती थी। कॉलेज में रोज़ फराह से मुलाकात होती थी। सारा दिन वो इकट्ठी ही होती थी। एक ही सब्जेक्ट था, इसलिए दोनों का एक साथ पीरियड होता था। फिर दोनों की दोस्ती भी तो मिसाली थी, और घर आकर सिर्फ चंद घंटे आराम से गुजारती थी। इधर फराह का फ़ोन आया नहीं और उधर जरिश बीबी ने घर से कदम निकाला नहीं। इस वक्त भी वो अली और फराह को फ़ोन करने आई थी। मामा ने कितना मना किया था, गुस्से से भी प्यार से भी समझाया था, और फिर जब जरिश की आंखों में आंसू मचल आए तो उन्होंने खुद ही पिचकार कर समझाते हुए उसे जाने की इजाज़त दे दी थी। ड्राइवर को उसने बाहर से ही चलता कर दिया था। चौकीदार ने उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। लॉन में फरा और अली बैठे खुशगपियों में मसरूफ थे। उसे देखकर दोनों के चेहरे खिल उठे थे। शुक्र है तुम आई तो, मैं तो अकेले बैठ बैठ कर बोर हो रही थी, किसी चीज़ में दिल ही नहीं लग रहा था। फरा उसे देखकर फौरन शुरू हो गई थी और वो हंस दी। कुछ न पूछो, मामा से बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली है। ना जाने कल से उन्हें क्या हो गया है, कल भी ना आने दिया और आज भी। मैं रोने लगी थी, फिर खुद ही कहने लगी कि चली जाओ, मगर एहतियात से, मैं कोई गड़बड़ ना करूं और ताई जान को बिल्कुल तंग ना करूं। तुम खुद ही बताओ भला, मैं तुम्हारी वालदा साहिबा को कब तंग करती हूँ? ये वही हैं जो मुझे एक लम्हे को भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। कुर्सी पर बैठकर उसने सबसे पहले अपना दुख रोया था। चूंकि ये रोज़ का मामूल था, फरा और अली ने मतलब ध्यान न दिया।
वैसे तुम दोनों ने कॉल करके मुझे अर्जेंट क्यों बुलाया है? खैरियत है ना? उन दोनों के चेहरे उसे कुछ सस्पेंस से भरपूर दिखाई दिए तो वो चौंकी। अपना दुखड़ा भूल कर फौरन पूछा, आज अम्मी और अब्बू के दरमियान बड़ी जोरों की लड़ाई हुई है। जब मैं कॉलेज से लौटी तब की बात है, फरहा ने संजीदगी से बताया। तो जरिश खामोशी से उसका चेहरा देखे गई। अली लापरवाही से बैठा हुआ था मगर उसका सारा ध्यान दोनों की जानिब था। क्यों? ये लड़ाई रोज का मामूल था मगर वो फिर भी पूछे बगैर न रह सकी। ताया जान और ताई जान की हर रोज हर नई लड़ाई जरिश को एक नई तकलीफ से दो चार कर जाती थी। इस वक्त भी यही कैफियत हुई थी। एकदम दिल अंदर ही अंदर तकलीफ से दो चार होता चला गया था। ये तो मुझे भी नहीं पता कि क्यों हुई, मगर जब मैं घर लौटी तो दोनों झगड़ रहे थे। मौजूए बहस समान भाई की शादी था। फरा ने आराम से बताया तो वो चौंकी। क्या? समान भाई की शादी? वो हैरत से चीख उठी थी। हिश, आहिस्ता। अम्मी को भी थोड़ी देर पहले मैंने दवाई देकर सुलाया है। वो उठ गई ना तो तुम्हारे साथ हमारी भी गर्दन दबोच लेंगी। फरहा ने उसे डराया था तो उसने भी लापरवाही से अपने सुनहरी बालों को पीछे झटका था। खैर, वो गर्दन तो कभी नहीं दबोचेंगी, इतनी तो इखलाकियत है उनमें। उसने कहा तो अली भी बोल पड़ा। खैर, ये सब कहने की बातें हैं। आजकल हमारी वालदा साहिबा को तुम्हारे साय से भी नफरत हो रही है, इसलिए तुम अपनी खैर मनाओ। ये ना हो कि किसी दिन हकीकत में गर्दन दबोच लें। अली ने चढ़ाया। यूं ही मुफ्त में? मेरी मामा ने कभी मुझे उंगली तक नहीं लगाई और वो गर्दन दबोचेंगी? वो हकीकतन बुरा मान गई थी। फरह का जी चाहा कि अपना सर पीट ले। दोनों की नोक झोंक में असल बात तो बीच में ही रह गई थी। फरह बीबी तो पेट की हल्की थी। जब तक अपनी घर की एक एक बात जरिश बीबी के कानों में ना उंडेल दे कुछ हजम ही नहीं होता था। चुप करो तुम दोनों, अपनी मैं शुरू कर दी है। असल बात तो मैंने बताई ही नहीं। उसने दोनों को डांट दिया था। अक्सर फरह इसी तरह अपने जरिश से 1 साल और अली से 2 साल बड़े होने का रौब जमाती रहती थी, जिसका दोनों पर कम ही असर होता था। चूंकि इस वक्त मौजूद गुफ्तगू समान भाई की शादी था, इसलिए जरिश और अली दोनों को चुप होना पड़ा। मगर समान भाई की शादी हो किससे रही है? जरिश ने ही पूछा था। अम्मी की भांजी कैसरा खाला की सबसे छोटी साहबजादी फौजिया साहिबा से, अली ने जवाब दिया था। क्या? जरिश हैरत से चीख उठी मगर फराह के घूरने पर धीमी आवाज करके पूछने लगी। मगर कब हो रही है? और समान भाई हैं कहाँ? कितने तेज हैं? मुझे पता तक नहीं लगने दिया और घर में किसी से जिक्र भी नहीं किया। वो अपनी हाँक रही थी। फराह को गुस्सा आने लगा। तुम फिलहाल अपनी चोंच बंद रखो और खामोशी से मेरी बात सुनो, उसने डांट दिया। जरिश ने उसके रोब जमाने पर घूरा मगर बोली कुछ नहीं। समान भाई खुद बेखबर है। फिलहाल बात अम्मी अबू के दरमियान है। अम्मी जान चाहती हैं कि हर हाल में समान भाई की शादी फौजिया आपी से हो, जबकि अब्बू इनकारी हैं। हर्जी क्या है? फौजिया आपी कितनी प्यारी हैं, एमकॉम कर रही हैं। अगर समान भाई की शादी उनसे हो जाती है तो कितने अच्छे लगेंगे ना दोनों साथ साथ। उसकी बात ख़त्म होते ही जरिश ने अपनी राय दी थी। फरा तो फरा, अली ने भी घूरा। अल्लाह ना करे अभी हमारे समान भाई पर इतना बुरा वक्त नहीं आया। अली ने कुछ तलखी से कहा था। तुम्हें क्या एतराज़ है? इतनी प्यारी तो हैं। जरिश को उसकी तलखी ज़रा ना भाई थी। सिर्फ प्यारी हैं और कोई गुण नहीं है उनमें। कैसरा खाला की तरह लगाई बुझाई में एकदम ताक। उससे शादी करने से बेहतर है कि समान भाई हमेशा कुंवारे ही रहें। अली से सबको यही शिकायत थी कि वो मुंह फट और साफ गो था, कभी लगी लिपटी नहीं रखी थी। इस वक्त भी उसकी साफ गोई सुनकर जरिश खामोश हो गई थी। अब्बू को इसी बात पर इतराज़ है। वो कहते हैं कि कैसरा खाला की किसी भी बेटी को वो एक लम्हे को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जाके सारी जिंदगी की अजियत सहना। फरा ने कहा तो जरिश उलझ गई। मगर फरा, इस तरह तो ताई अम्मी मजीद डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगी। वो फौजिया आपी को बहुत चाहती हैं। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उनका ऐसा इरादा है। अब अगर वो चाहती हैं तो उनकी ख्वाहिश को भला कैसे रद्द किया जा सकता है? फौजिया आपी इतनी बुरी भी नहीं है, बस वो कैसरा खाला के ज़ेरे असर रहती हैं इसलिए ऐसी हो गई हैं, वरना मुझसे तो बड़े अच्छे अंदाज में मिलती हैं। जरिश ने सादगी और सच्चाई से कहा था। अली इस्तेहज़ाइया हंसा। अच्छी हैं, पोज करती हैं मोहतरमा। वो अच्छा खासा जला भुना बैठा था। अम्मी और अब्बू के दरमियान लड़ाई अच्छी खासी बढ़ गई है। परसों शाम से समान भाई लाहौर गए हुए हैं। अगर वो यहाँ होते तो लड़ाई इतनी न बढ़ती। अब्बू तो गुस्से से घर से निकल गए थे। फरहा ने मजीद बताया तो जरिश को फिर ताया अब्बू का दुख दुखी कर गया। इस मसले का कोई ना कोई हल तो होगा ना।
वो हकीकतन बुरी तरह परेशान हो गई। हाँ है, अली ने फौरन कहा था। समान भाई भी उस्मान भाई की तरह किसी लड़की को पसंद करके अम्मी और अब्बू दोनों को नज़रअंदाज करके अपनी पसंद से शादी करें। तो तुम्हें इल्म है ना, अब्बू चाहते थे कि उस्मान भाई की शादी हादिया आपी से हो। अम्मी ने महज तुम्हारी मामा की वजह से हादिया आपी के लिए इनकार कर दिया था। तब कितनी लड़ाई हुई थी। अम्मी ने तभी कैसरा खाला की बड़ी बेटी सबाहत बाजी का नाम लिया था, जो कि अब्बू को कतई मंजूर नहीं था। महीनों लड़ाई होती रही थी। उस्मान भाई उकता कर अपने ससुर की बेटी के लिए अपने ससुर से बाला ही बाला सारे मामला तय करके आए थे। यहाँ आकर हमें बताया कि 1 माह बाद उनके ससुर की बेटी डॉक्टर जुबारिया से शादी हो रही है। अम्मी और अब्बू तो हक्का बक्का रह गए। नाराज हुए तो भाई ने साफ कह दिया, जुबारिया आप दोनों के लड़ाई झगड़ों से ज्यादा बेहतर है। और कितनी धूमधाम से शादी हुई थी। अब्बू हादिया पी को बुनियाद बनाकर अपनी जगह रंजीदा थे और अम्मी अपनी जगह। अब भी यही हाल होना चाहिए। समान भाई खामोशी से किसी को पसंद करके शादी करके घर ले आए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अली साहब ने क्या जबरदस्त हल पेश किया था। फरा और जरिश दोनों उसको खा जाने वाली नजरों से तकती रह गई। तुम अपनी चोंच बंद ही रखो तो बेहतर है। सुमान भाई ऐसे नहीं है, इतने अच्छे हैं वो तो ताया अब्बू की मर्जी के बगैर कुछ कर ही नहीं सकते। जरिश ने फौरन तरदीद की थी। तब वो सारी उम्र कमारे ही रहेंगे। हमारे वालदैन में कभी इत्तेफाक होने वाला नहीं है। अली ने एक तल्ख हकीकत सामने रखी थी। फरा और जरिश सिर्फ अली को देख कर ही रह गई थी। शर्म करो, वालदैन हैं वो तुम्हारे। जरिश ने उसे शर्म दिलानी चाहिए थी। वो सर झटक गया। माँ बाप है, ऐसे माँ बाप से तो हम। अली, इससे पहले कि वो कुछ गलत कहता, फरह ने लर्ज कर उसे टोक दिया। वो खुद भी लब भींच कर उठ खड़ा हुआ। छोड़ो इस टॉपिक को, गोली मारो, रोज की बात है ये। आओ हम कैरम खेलते हैं। फरह उसे मलामती नजरों से देख रही थी। वो नजरअंदाज किए जरिश से कह रहा था। जरिश तासुब से सर हिलाती उठ गई। तुम नहीं सुधरोगे, कितने तल्ख होते जा रहे हो तुम। आइंदा ताया जान और ताई अम्मी के लिए ऐसी वैसी बात मत कहना। वो वालदैन हैं तुम्हारे, और वालदैन कभी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते। वो उसे नासेब बनी समझा रही थी। अली हंस दिया। अंदर ही अंदर उसे अपने अल्फाज की तलखी का एहसास भी हुआ था। आई एम सॉरी, ओके, आइंदा नहीं कहूँगा। अब तो तुम दोनों हंस दो, प्लीज़ प्लीज़। वो एकदम हाथ जोड़कर खड़ा हो गया था। दोनों ही हंस दी। चलो इसी खुशी में कैरम खेलते हैं। अम्मी दवाई खाकर सोई हैं, रात से पहले वो उठेंगी नहीं। आज जी भर कर मौज करेंगे। वो फौरन अपनी जोन में लौट आया था। फरा और जरिश दोनों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। कितने दिनों बाद तो उन्हें खेलने का मौका मिल रहा था। नवेरा, वो किचन में खड़ी मसाला भून रही थी जब पीछे से भाभी नौरीन ने आवाज दी थी। जी भाभी। वो फौरन पलटी थी। सब कुछ तैयार है, तुम नहाकर कपड़े वगैरह बदल लो, मैं ये सब कर लूंगी। बाद में अगर मेहमान आ गए ना तो तुम इसी हुलिये में उनके सामने चली आओगी, नौरीन भाभी कह रही थी। उनकी आखिरी बात पर वो हंस दी। मंगनी के बाद पहली बार फारूक चचा फैमिली समेत डिनर पर इनवाइटेड थे। अम्मा ने साथ ही हमीद चचा की फैमिली को भी इनवाइट कर लिया था। वो और भाभी सुबह से किचन में घुसी खाना पकाने के चक्कर में उलझी हुई थी। इस दौरान घर की भी अच्छी खासी सफाई सुथराई कर ली गई थी। अब सब कुछ तैयार था, सिर्फ कोफ्तों का सालन तैयार करना बाकी था। बाकी सारा काम हो चुका था। कोफ्ते भी तैयार थे। वो मसाला भून रही थी जब भाभी को उसके हुलिये का एहसास हुआ था। सारा दिन काम की वजह से वो अच्छी खासी पीली लग रही थी। तभी उन्होंने उसे किचन से जाने को कहा था। हो जाऊंगी तैयार, अभी खासा वक्त है। उसने नजरअंदाज किया था। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम फौरन निकलो यहाँ से। भाभी ने उसके हाथ से चम्मच खींच लेना चाहा तो उसे किचन से निकलना ही पड़ा। अपने कमरे में अलमारी से अपना एक सूट निकालकर वो बाथरूम में घुस गई थी। नहाकर बाहर निकली तो अपने कमरे में साजदाबाजी के साथ नवाज की बड़ी बहन सना आपी को देखकर झीम सी गई। मंगनी के बाद पहली दफा रूबरू सामना हो रहा था, वरना उसकी उनसे अच्छी खासी फ्रेंडशिप थी, मगर रिश्ता बदलते ही झिझक भी दरमियान में हाइल हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम। उसने दोनों को मुश्तरका सलाम किया। काले गीले लिबास में लंबे बाल पुश्त पर डाले वो इंतहाई तरोताज़ा हवा का झोंका महसूस हुई थी। वालेकुम अस्सलाम। पहले साजदाबाजी ने, फिर सना आपी ने उसे गले से लगा लिया। काले लिबास में तेरा गोरा बदन यूं लगे ईमान से। उससे जुदा होकर बाजुओं से थामकर उसका चेहरा देखते सना आपी शरारत से गुनगुनाई थी।
وہ مزید جھیم گئی۔ کاش نواز بھائی بھی آ جاتے، اس سے دور ہو کر انہوں نے کہا تھا۔ اس کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا تھا۔ سب آ گئے ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی پھلجھڑی چھوڑتی اس نے فوراً پوچھا تھا۔ سب سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے آنکھیں مٹکائی تھیں تو نویرہ کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ کم از کم وہ نہیں جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ تولیہ سے اپنے بال خشک کرتے اس نے کہا تو وہ کھل کر ہنسی تھی۔ مثلاً میں کیا سمجھی ہوں؟ وہ مسلسل شرارت پر آمادہ تھی۔ نویرہ نے ہاتھ روک کر انہیں خفگی سے دیکھا۔ اف، آج یہ ثنا آپی کو کیا ہو گیا ہے؟ ساجدہ باجی، آپ اکیلی آئی ہیں؟ بھائی جان اور بچے نہیں آئے؟ تولیہ ایک طرف ڈال کر برش لے کر اپنے لمبے بالوں کو وہ سلجھانے لگی تھی۔ ساجدہ باجی جو مسلسل مسکرا رہی تھی وہ ہنسنے لگی۔ توبہ کرو، تمہارے بھائی صاحب مجھے اکیلے کہاں آنے دیتے ہیں؟ انہی کے ساتھ آئی ہوں، البتہ بچوں کو گھر خالہ جی کے پاس ہی چھوڑ آئی ہوں۔ ساجدہ باجی نبیل بھائی سے بڑی تھی۔ ان کی شادی نبیل بھائی کے سسرال میں نبیلہ بھابی کے بھائی کے ساتھ ہی ہوئی تھی۔ احمد بھائی بہت اچھے مزاج کے شخص تھے۔ ادھر نبیلہ بھابی بھی سلجھی ہوئی ملنسار طبیعت کی مالک تھی۔ کبھی محسوس ہی نہیں ہوا تھا کہ وٹے سٹے کی شادی ہے۔ نویرہ 4 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ بڑے بھائی ساجد تھے جو کہ بیوی بچوں سمیت دبئی میں رہتے تھے۔ سال بعد آتے، مل کر پھر چلے جاتے تھے۔ بس نویرہ ہی غیر شادی شدہ تھی۔ اب منگنی ہو چکی تھی اور ارادہ چند ماہ شادی کر دینے کا تھا۔ بال سلجھا کر وہ سلیقے سے دوپٹہ اوڑھ کر ان دونوں کے ساتھ ہی کمرے سے باہر آئی تھی۔ چچا حمید کی فیملی بھی آ چکی تھی۔ بھابی نے سب کو ہی چائے اور دیگر لوازمات پیش کر دیے تھے۔ وہ سب سے مل کر بھابی کے پاس آ گئی۔ وہ چھوٹی چچی کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی جبکہ اماں تائی جان کے ساتھ مصروف گفتگو تھی۔ ہندیہ تیار ہو گئی ہے؟ کچھ رہ تو نہیں گیا؟ اس نے آہستگی سے بھابی سے پوچھا تو انہوں نے سر ہلا دیا تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا، پھر حاضرین پر نظر ڈالی۔ ثنا آپی کے علاوہ شمائل آپی، زارا آپی اور حمیرہ چاروں بہنیں آئی ہوئی تھیں۔ صرف ثنا آپی کے میاں اور بچے تھے، جبکہ زارا اور شمائلہ دونوں تنہا ہی تھیں۔ حمیرہ اور رمشا سر جوڑے باتیں کر رہی تھیں، ساتھ ساتھ چائے بھی پی رہی تھیں۔ ان پر نظر پڑنے کے بعد رضا حمید پر جا ٹھہری۔ وہ ہال کے کونے میں رکھے آخری صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ ارے رضا بھی آیا ہوا ہے۔ اسے ایک دم یاد آیا تھا جب سے اس کا رشتہ طے ہوا تھا تو اسی شام وہ ان کے گھر آیا تھا۔ کس قدر غصے میں تھا، صرف اتنی بات پہ کہ اسے کچھ بھی بتایا نہیں گیا۔ نویرہ نے اسے کتنا سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ خود بھی اس سارے معاملے سے بے خبر تھی۔ جو بھی ہوا آنن فانن ہوا، مگر یقین کیے بنا ہی وہ ناراض ہو کر چلا گیا تھا۔ پھر پورے 8 دن بعد اس نے اپنی منگنی والے دن دیکھا تھا۔ وہ دلہن بنی ہوئی تھی ورنہ اسے منانے کی کوشش ضرور کرتی۔ اس کے بعد بھی دن اتنی مصروفیت میں گزرے کہ وہ روز ارادہ کرنے کے باوجود نہ تو ان کے ہاں جا سکی تھی اور نہ ہی فون کر سکی تھی۔ اب منگنی کے پورے 6 دن بعد وہ دکھائی دے رہا تھا، انتہائی سنجیدہ اور خفا خفا سا۔ اس کی ناراضگی کو یاد کر کے نویرہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ خاموشی سے اٹھ کر اس کی طرف چلی آئی تھی۔ رضا حمید نے لہجہ بھر کو گردن اٹھا کر اسے دیکھا، پھر گردن جھکا لی۔ کیسے ہو رضا؟ اسے خاموش دیکھ کر نویرہ نے پہل کی تھی۔ اس کے کھنکتے لہجے پر رضا حمید نے سر اٹھا کر نویرہ کو دیکھا۔ بلیک سوٹ میں وہ انتہائی جذب نظر لگ رہی تھی۔ بغیر کسی ہار سنگھار کے بھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بائیں ہاتھ کی کلائی پر موجود بریسلٹ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے گھماتے رضا کے اندر انتشار برپا کرتی چلی گئی۔ ٹھیک ہوں۔ دوپٹے سے جھانکتے بالوں کی آبشار وہ صرف ایک ہی نظر دیکھ پایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بڑی مشکل سے سمجھایا دل پھر اختیار سے باہر ہوتا، اس سے نظر ہی پھیر لی تھی۔ نظر بلا ارادہ رمشا اور حمیرہ کی جانب جا اٹھی تھی۔ رمشا اسی کی طرف دکھ رہی تھی۔ ہونٹوں پر عجیب طنزی اور استہزائی مسکراہٹ تھی۔ رضا کو لگا جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ وہ مزید سلگنے لگا۔ ناراض ہو؟ وہ سائڈ پر رکھی تپائی پر بیٹھ چکی تھی۔ رضا نے اس دفعہ اس کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ نہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ پچھلے 2 ہفتوں سے تم میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو۔ تم میرے چھوٹے سے دوست ہی نہیں، انتہائی پیارے سے بھائی بھی ہو۔ میں بھلا تم سے وہ سب کیوں چھپاتی؟ مجھے تو خود علم نہیں تھا۔ نویرہ وضاحت کر رہی تھی۔ رضا حمید کو لگا وہ اسے چھوٹا سا دوست، پیارا سا بھائی کہہ کر جیسے اس کے منہ پر تماچے مار گئی ہو۔ وہ تو ہمیشہ یہی سب کہتی تھی، مگر پہلے کبھی دل کو اتنی تکلیف ہی نہیں ہوئی تھی۔ میں ناراض نہیں ہوں۔ رضا کو اس ذکر سے تکلیف اتنی ہو رہی تھی، اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ کچھ کہتی اس نے فوراً تردید کی تھی۔ واقعی؟
वो बेयकीनी से पूछ रही थी। मैं सच कह रहा हूँ। चलें ये बताएं, आप खुश हैं? अपनी तरफ से उसने नवेरा का ध्यान बटाना चाहा। ये अम्मी और भाइयों का मुश्तरका फैसला है। वो खुश हैं तो जाहिर है मैं भी खुश हूँ, उसने साफगोई से बताया था। रजा हमीद उसके मलिह चेहरे को देखा गया। क्या बातें हो रही हैं? शायद वो कुछ और भी पूछता, रमशा हुमैरा को लेकर इधर ही आ गई। बज़ाहिर बहुत अपनाई तो बेतकल्लुफी से उसने नवेरा को मुखातिब किया था, लेकिन देख रजा को ही रही थी। रजा ने नजरें फेर ली। वो अच्छी तरह समझ गया था कि वो उन दोनों को बातें करता देख जानबूझ कर आई है। उसे रिमशा से मजीद नफरत सी हुई। कुछ नहीं, रजा से यूं ही मंगनी की बातें हो रही थी। वो चुप सादे बैठा हुआ था। नवेरा ने ही बताया। अच्छा, मैं तो समझी कि शायद। रिमशा फिक्रा अधूरा छोड़कर हंस दी थी। रजा ने गैज़ो गज़ब भरी नजरों से उसे देखा। हुमैरा और नवेरा कुछ नहीं समझी थी सिवाय इसके कि शायद दोनों में फिर कोई नया मुआरका हुआ है। एक्सक्यूज मी। रिमशा को मुस्कुराते देखकर वो उस पर लानत भेजता वहां से उठ ही गया था, मगर पलटने से पहले उसने रिमशा पर एक निगाह गलत जरूर डाली थी, जिसे उसने तंजिए मुस्कुराहट में उछाल दिया था। वो अपने पीसी के सामने बैठे इंटरनेट पर चैटिंग में मसरूफ थी, जब ही आने वाली ईमेल पर फराह चंद सेकंड को हिल भी नहीं सके। आप कैसी हैं और मेरी ईमेल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही? प्लीज मुझे जवाब दें, मैं शिद्दत से मुंतजिर हूँ। मॉनिटर की स्क्रीन पर नजर आने वाले ये अल्फाज फराह के दिलो दिमाग में घूम रहे थे। वो अक्सर इंटरनेट पर चैटिंग करती रहती थी, मगर पिछले चंद माह से उसे इस किस्म की मेल्स आना शुरू हो गई थी। शुरू में तो उसने भी जस्ट फॉर एंजॉयमेंट का उनका जवाब भी दिया था। मेल्स के जरिए ही उसे इल्म हुआ कि प्रिंस नाम का वो कोई लड़का है, पाकिस्तान में ही रहता है, मगर कहाँ ये उसने कभी बताने की कोशिश नहीं की। वो अपनी तालीम MBA बताता था। शुरू में वो बहुत अच्छे इंसानों की तरह मेल्स भेजता था, मगर उसकी मेल्स पढ़कर उसे नहीं लगता था कि उस लड़के का असर नाम होगा, बल्कि वो तो इससे भी खाइफ थी कि हो सकता है वो लड़की हो और लड़का बनकर उसको बेवकूफ़ बना रही हो। उससे फराह को खौफ आने लगा था। फराह ने उससे अपने बारे में कभी कुछ भी बताने की कोशिश नहीं की, बल्कि शुरू में जब उसने फराह से उसका नाम पूछा तो फराह ने शरारत से लिख दिया था, अगर आप प्रिंस हैं तो हम प्रिंसेस हैं, और प्रिंस के नाम नहीं हुआ करते। तब से अब तक तो वो उसे प्रिंसेस ही कहता था, मगर अब सिर्फ एक हफ्ता पहले ही उसने फराह को वो सब कुछ बताकर न सिर्फ हैरान कर दिया था, बल्कि खौफजदा भी कर दिया था। वो जो कोई भी था, फराह सईद अहमद के मुतालिक अच्छी खासी मालूमात रखता था। वो ना सिर्फ उसका असल नाम जानता था, बल्कि वो तीनों भाइयों, अम्मी, अब्बू, फराह के फैमिली बैकग्राउंड और अब्बू के बिजनेस से मुतालिक भी अच्छी खासी मालूमात रखता था। वो सेकेंड जे में पढ़ती है, उसे ये भी इल्म था। उस दिन फराह वाकई सचमुच डर गई थी। वो ना जाने कौन था या थी, उसका पता नहीं क्या मकसद था, मगर फराह को हकीकी तौर पर उसकी ईमेल से खौफ महसूस होने लगा था, जैसे उस वक्त भी वो ये ईमेल देखकर डर गई थी। फराह प्लीज़ मुझे रिप्लाई करो। मुझे पता है तुम मेरी सारी ईमेल्स पढ़ रही हो, बस एक दफ़ा नेट पर तो मैं तुम्हारा जवाब पढ़ना चाहता हूँ, प्लीज़। एक और ईमेल आ गई थी। फराह की साकित उंगलियां कीबोर्ड पर लर्ज रही थी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? अगर वो वाकई कोई लड़का हुआ तो? वो सोच कर ही दहल गई थी। उसका क्या मकसद हो सकता है? मुझसे नेट पर चैटिंग शुरू करने से लेकर अब तक के हर अमल में एक सोचा समझा मंसूबा साफ दिखाई दे रहा है। फिर वो मुझसे मुतालिक इतनी दुरुस्त मालूमात कैसे रखता है? वो जूं जूं कोड़ रही थी, उसका दिमाग फटने को था। वो जो कोई भी है, मुझे एक दफ़ा उससे दो टूक बात करनी चाहिए। उसकी मालूमात की कम से कम तरदीद तो कर ही सकती हूँ। अगर फिर भी वो ना माना तो मैं साफ साफ बात करूंगी, वरना नेट इस्तेमाल नहीं करूंगी, या अपने ईमेल एड्रेस ही तब्दील कर लूंगी, या फिर जो कोई भी है भला क्या कर लेगा। काफ़ी देर सोचने के बाद उसके जहन ने यह हल पेश किया था। हाँ, मुझे इसकी ईमेल्स का जवाब ज़रूर देना चाहिए। इस तरह तो मैं उसकी मालूमात पर सच का यकीन सब्त कर रही हूँ। कम अज़ कम मैं उसकी मालूमात को रद्द ही कर सकती हूँ। इस तरह खौफजदा होने से उसका भला क्या होगा? इस सोच के साथ ही उसे कुछ हौसला हुआ। कीबोर्ड पर उसकी उंगलियां तेजी से हरकत करने लगी थीं। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मॉनिटर पर ये अल्फाज लिखकर उसने एंटर की दबा दी। शुक्रिया फराह, आपने को मेरा ख्याल तो आया। अगर आज भी आप मेरी मेल्स का जवाब न देती तो कल मैंने आपके घर आ जाना था। उसकी तवक्को से भी जल्दी उसे जवाब मौसूल हुआ था। उसके अल्फाज ने फराह को भग से उड़ा दिया था। मैं फराह नहीं हूँ, समझे आप मिस्टर प्रिंस? खौफ के साथ साथ उसके अंदर मज़ाहमत की भी एक शदीद लहर उठी थी। तुम फराह हो,
تمہاری بائیں رخسار کا تل مجھے تمہیں لاکھوں لڑکیوں میں بھی غلط پہچاننے کی غلطی نہیں کرنے دیتا مائی ڈیئر فرح سعید احمد۔ فرح کے ہاتھ بے اختیار اپنی بائیں رخسار کے تل کو چھونے لگے تھے۔ فرح کا دل چاہا کہ کاش وہ جو کوئی بھی تھا وہ اس کے سامنے ہوتا تو وہ اس کا سر پھاڑ دیتی۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ وہ جتنی بھی تردید کرتی، وہ جو کوئی بھی تھا اس کی معلومات بڑی اپ ڈیٹ تھی، اسی لیے اس نے مزید میں فرح نہیں ہوں کہ الفاظ لکھنے کے بجائے اس سے اصل بات معلوم کرنا چاہی تھی۔ یہ اس کا خود پیدا کردہ مسئلہ تھا جسے اس نے خود ہی ہینڈل کرنا تھا۔ میں جو کوئی بھی ہوں اس بات کو جانے دو۔ بس مائی ڈیئر فرح یہ بات یاد رکھنا کہ میں تم سے بہت شدت سے محبت کرتا ہوں۔ کب سے؟ یہ تو شاید مجھے بھی علم نہیں، مگر تب سے مجھے شدت سے تمہارے وجود کا احساس ہوا ہے جب تمہاری تصویر دیکھی تھی۔ اب تو مجھے تمہارے چہرے کا ایک ایک نقش ازبر ہو چکا ہے۔ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری آنکھوں کا رنگ کیا ہے۔ وہ آنکھیں پھاڑے مانیٹر کی اسکرین کو گھورے گئی۔ تمہیں میری تصویر کہاں سے ملی؟ وہ جو کوئی بھی تھا اپنے بارے میں کبھی بھی بتانے والا نہیں تھا۔ سو تم کون ہو کے سوال کو دوبارہ دہرانے کے بجائے اس نے یہ الفاظ لکھ دیے تھے۔ ڈھونڈنے والے کو تو خدا بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، یہ تو تمہاری تصویر ہے۔ فرح کو لگ رہا تھا کہ جیسے ای میل بھیجنے والا اس کے احمقانہ سوالات پر قہقہے لگا رہا ہو۔ وہ بری طرح الجھ گئی۔ اسے اس دن پر پچھتاوا ہونے لگا جب سمان بھائی سے فرمائش کر کے اس نے اپنے پی سی پر انٹرنیٹ کی سہولت لگوائی تھی۔ مجھے پڑھائی کے لیے ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے، پھر کالج سے آ کر سیکھے گئے سبق کو بھی کمپیوٹر پر دہرانا پڑتا ہے، اس لیے پلیز بھائی مجھے نیٹ کی سہولت مہیا کر دینا۔ سمان بھائی سے انٹرنیٹ کی بات کرتے ہوئے اس نے کتنے آرام سے کہا تھا، جو کہ غلط بھی نہ تھا۔ بس کبھی کبھار وہ نیٹ پر چیٹنگ کرنے لگی تھی، مگر وہ بھی بہت کم۔ نیٹ پر وہ جتنے بھی لوگوں سے چیٹنگ کرتی تھی اس میں زرش کے علاوہ اس کی کالج کی فرینڈز تھیں اور چند ایک ماموں اور خالاؤں کی بیٹیاں تھیں، کوئی بھی لڑکا نہ تھا۔ پہلی دفعہ اس نے پرنس نامی شخص کی آنے والی ای میل پر جواب دیا تھا اور زندگی میں پہلی ہی چوری پہلا ہی پھندا ثابت ہو رہی تھی۔ خاندان میں زرش کے اور چند ایک اور کزنز لڑکیوں کے علاوہ کسی اور کے پاس اس کی ای میل ایڈریس تھا ہی نہیں کہ وہ یہ سوچتی کہ ان میں سے کسی ایک کی شرارت ہو سکتی ہے۔ مگر کون تھا جو اس قدر اپ ڈیٹ انفارمیشن رکھتا تھا؟ نہ صرف اسے معلومات حاصل تھیں، بس اس کے پاس اس کی تصویر بھی تھی۔ وہ اس قدر کنفیوز ہو چکی تھی کہ مارے خوف کی اس نے کمپیوٹر ہی شٹ ڈاؤن کر دیا تھا۔ مجھے علی یا پھر سمان بھائی سے کسی ایک سے بات ضرور کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ میرے کردار پر ہفائے۔ ادھر ادھر مسلسل چکر لگاتے وہ سوچ رہی تھی۔ نہیں، میں بھلا انہیں کیا کہوں گی، کیا بتاؤں گی؟ اس طرح تو میری اپنی ہی سبکی ہوگی، پھر میں کیا کروں؟ یا اللہ تو ہی جانتا ہے، میری نیت صاف تھی۔ تھک ہار کر بستر پر گر کر وہ زور و شور سے درود شریف کا ورد کرنے لگی تھی۔ جب بھی کوئی پریشانی یا مسئلہ ہو تو بیٹا درود شریف کا ورد شروع کر دیا کرو۔ درود ابراہیمی سے ساری پریشانی ختم ہو جاتی ہے اور اللہ ایسی جگہ سے پریشانی کا حل فرماتا ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہت عرصہ پہلے اسے دادی جان کی ہی بات یاد آ رہی تھی۔ وہ مزید خشوع و خضوع کے ساتھ ورد کرنے لگی تھی۔